Hello and welcome to Voice of Daily Current Affair Discussion. My name is Sipsang Raja with you Daily Current Affair Discussion. तो आज डिस्कशन स्टार्टिंग रो आम देखा कि 2 अक्टोबर गांधी जयंती समस्ते जानते द 154th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी एंड 119th बर्थ एनिवर्सरी फॉर द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड जी की जय जवान जय किसान स्लोगान देते तो समस्ते जानते भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री आज वेल। तो दी जनकर आम देखा जन्मदिन गोटे तारीख में पड़े जय जवान जय किसान स्लोगान से देते एंड गांधीजी गोटे कोटेसन ये दिखाई कि कारण कोटेसन रे एसे आसे तो दैट मीन्स आम यहाँ कौट लिखिपर एसे आम ये कोटेसन लिखिपर देयर इज नो पावर बिगर दैन द पावर ऑफ ट्रूथ। सो दिस quotation you could use while writing the essay, and also while writing the essay you could also use the Jai Jawan Jai Kishan if that essay or any sort of answer which is related to the rural India. तो जदि rural India पे अच्छी बाकी माँ जवान ऊपर अच्छी तमरो किसान ऊपर अच्छी that time you can write this quotation and you can remember this person or the second prime minister of India Lal Bahadur Shastri, you can remember him in that time. So let's move on. तो आज आम जी एडिटोरियल पेज को अच्छा ता पूर्व तुम देखी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 तो कि मतलब एथे कौन करा कि इंडिया इनवाइट्स लिखाई ना थ्रू दिस मैरीटाइम इंडिया समिट आई वांट टू इनवाइट द वर्ल्ड टू कम टू इंडिया एंड टू बी द पार्ट ऑफ द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी. India is very serious about the growing the maritime sectors, emerging as what leading blue economy in the world. So this is all about what blue economy. That means when it comes to the what I would say the Global Maritime India Summit 2023, this talk about the blue economy investment, all this sorts. Okay, here we are member editorial part को जब आज यूजुअल So here is the editorial part. As here is the editorial part को मैं इसकी देखिए अबे editorial part रे कोना में देखिए तो editorial part रे जदि हम देखिए महात्मा गांधी के ऊपर obviously में quotation देखी सारी चे गांधी जी को गोटे स्वप्न थिला कि रूरल इंडिया को ऊपर गोटे स्वप्न थिला. So article 40 of Indian Constitution that to be the DPSP talks about the village, okay, that like village पंचायत कथा discuss करंती तेणु करके हमें देखिबा we must not lose faith in humanity. Humanity is like an ocean. If a few drops of the oceans are dirty, the ocean does not become dirty. So that means humanity रो value अच्छी. ये quotation ना बहुत मायने रखे. So गांधी जी कहवा था कि we must not lose the faith in humanity, and humanity is like ocean. If you drop of the ocean, if turns to dirty, that does not mean the whole ocean become dirty. अर्थात ये कोटेशन कहवा कथा कि हाँ ठीक अच्छी किसी लोक आम ह्यूमानिटी देखो नहांती बा किसी लोक ह्यूमानिटी देखेबे नहीं. दैट डज नॉट मीन्स कि ह्यूमानिटी सोसाइटी रे मरी जाइछि ना. ह्यूमानिटी अच्छी तेन ह्यूमानिटी में अच्छी ताको रेस्पेक्ट देबा ताको मते फॉलो करबा. जब विद दिस वी विल स्टार्ट. एस चंद्रशेखर the professor of the Indira Gandhi Institute for the Development of the Research in Mumbai लिखिछन्ति गोटे village of India, no the India that still lives in its villages. तो तांको कहा कथा that means a village ऊपर आर्टिकल टा लिखिछन्ति जो village रे इंडियंस माने रुहंती village रो स्टैटिस्टिक्स से देइछन्ति कि केते लोक रहंती डेटा अनुसार केते प्रकार village अछि जेंति स्मॉल village रहला that means खाली village रो village रो definition कोन ए सब से देइछन्ति. तो एबे हमें देखिबा अंकर आर्टिकल्स को. ओके तो एस चंद्रशेखर कहवा कथा कि जो ये दी जण हमें देखबा गांधी जी कर कथा नहीं जाओ किबा जवाहरलाल नेहरू को कथा नहीं जाओ किबा भीम राव अंबेडकर, they talk about the small farmers, they talk about the rural India, they used to talk about the rural India. Now that means हमें rural India को जानिबा दरकार. No rural India, अरे rural India कौन, whether the rural India has gone off, whether the population of the rural India has gone off, what the changes is there, you have to know the rural India.
For that, data is very important. That data is crucial for the implementing the and formulation of the policies for the rural India as well. So that is why the first census after the independence, when it was conducted in 1951, that time जदि हम देखा गांधी डेथ पर the population was around 300 million. This data जहाँ भी ये आम पढ़ा ना, ये जो डेटा ये तुमको पेपर 2 रे यूज हम देख ये कौन यूज हम पेपर 2 रे भी यूज हो पार पेपर 3 रे यूज हो पार तो मैक्सिमम तुम पेपर 2 रे यूज हम एज अ गवर्नेंस पार्ट बट हाँ पेपर 3 रे इकोनोमिक पार्ट तुम यूज कर बट तुम पेपर 2 रो काम अधिक ये जो आम कोटेशन देखिले यहाँ तुम पेपर 4 रे तुम इथिक्स रे लिखिपार ये कोटेशन को ओके सो दैट मीन्स आम देखा टुडेज सो मोर दैन 3 times दैट मीन जो पॉपुलेशन थिला 300 मिलियन जो पॉपुलेशन थिला दैट हैज चेंज्ड से पॉपुलेशन चेंज है कि प्रिसाइजली यदि वर्तमान आम पॉपुलेशन को देखा तार 3 times हो जाए दैट मीन्स 1 billion सो ऑलमोस्ट व्हाट 1 billion पॉपुलेशन at present यदि हम देखा almost 1 billion rural population that means what like we are having what that is the 4.5 billion population okay ताधर जति 1 billion रोची तुमर कोठी rural India रे कहिबा कथा estimated जति हम करबा household rural population though because of could not conduct the census जति हमें pandemic जो census करि परने नाही किंतु हमरो जना पड़ुछि कि इट इज फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस जेमति कि हमरो अंत्योदय सोर्सेस रु जेते अंत्योदय योजना हला बट वी कैन गेट सम इनसाइट फ्रॉम द मिशन दैट इज व्हाट अंत्योदय डेटा जदि हमरो हेइनी सेंसस से डेटा रे किछि डेटा कलेक्शन हेतला अंत रूरल मिनिस्ट्री जो डेटा कलेक्शन करथला दैट वुड बी यूजफुल फॉर द व्हाट दैट मींस ब्रॉड चेंजेस कोन आसीछि जोटा कि 2011 ठो नै कि 22 भीतर बा 21 भीतर कोन चेंजेस फास्ट चेंजेस से कौच जी आम अंत्योदय जो मिशन रू डेटा जोटा आम देखा है ना कौन से अथर कह था माय गेस एटलिस्ट every 6 in out of 10 Indians are living in the rural the first point से कह था से डेटा रू जना पड़ुछि so 6 out of every 10 people they are living in India so population increased from 76,000 to 64 lakhs so this would be some sorry okay 1 minute large villages oh sorry number their number the large villages increases so that means हम कहबा 11 to नेकी 2020 भितरे जो हमरो large villages रो संख्या बढ़ी जाई छि जेमति हम देखबा almost 60,000 to 64,000 or 65,000 on average हम देखबा बढ़ी छि इमान करो large villages रो संख्या इंडिया रे बढ़ी छि आ सेमान को संख्या कोठी अधिक बढ़ी छि उत्तर प्रदेश राजस्थान बिहार है ना फॉलोड बाय कर्नाटका वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र ये जो 6टा स्टेट रे देखा ये लार्ज विलेजेस रो संख्या बढ़ी दैट मीन्स इंडिया रे रूरल इंडिया रे चेंजेस कौन आसी ना लार्ज विलेजेस रो संख्या बढ़ी सेकेंड जिनस हमें मिशन अनंत दैट इज व्हाट अंतर्दय डेटा रो जणाई पड़िबा कि जो रूरल पॉपुलेशन 1.03 बिलियन ओके दैट मीन्स हम कहबा द इंडियंस रूरल पॉपुलेशन रो जणा पड़िबो किंतु in 2011 Indian rural population was 833 million so that means the rural population has gone up okay so what increased by 197 million increase करिछि ये population हमको देखिया को मिलिबो तो that means total population बढ़िछि आउ कोन हम देखले ना जो broad villages और large villages संख्या मध्ये हमरो बढ़ी बढ़ी जाइछि यदि हमें when India's rural population increased by 94 millions it's though to explain the increase the decades तो obviously हम पकड़े डेटा आते नहीं जति हम देखबा टोटल गोटे पॉपुलेशन इंक्रीज करिछि है ना द रूरल पॉपुलेशन इंक्रीज कर बढ़ी जाउछि तेणु एक्यूरेसी भी ये जो मिशन जो आम डेटा कथा कहूचे ये कौटू आनी अनंत दैट इज व्हाट अंत्योदय रु आनी तो सेटा भी एक्यूरेसी केते अछि सेटा भी हमको एते जना नहीं बट जा भी आम डिस्कस करूचे है ना तो से कथा कथा अर्थ सो शेयर ऑफ रूरल पॉपुलेशन हैज गन ऑफ दैट मीन्स barely आम कहबा in 2011 it was 9% of the rural population आम कहबा lived in the villages है ना over the 1000 now that would be 16% अर्थात कौन से गोटे विलेज जो आम कहबा 10,000 अधिक लोक रोथुआ विलेज ठीक अच्छे से पॉपुलेशन पे विलेज पॉपुलेशन बढ़ी के 16% बढ़ी जोटा कि 9% रु
देखिछे तेणुक एक तो विलेज पॉपुलेशन बढ़ुची, दुई रे टोटल पॉपुलेशन बढ़ी, तीन रे जो लार्ज विलेज संख्या बढ़ी बढ़ी जाइए। अच्छा ये विलेज लार्ज विलेज आम ताले विलेज क्या कौचे ताले देख आमर जो वन माइट आस्क के लार्ज विलेज नॉट गेट रिक्लासिफाइड एज द अर्बन एरियाज तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243Q कहीं जो बड़ बड़ विलेज गुड़ाक अर्बन एरियाज करना किंतु क्राइटेरिया फुलफिल होनी। साधारणतः गोटे विलेज गोटे अर्बान हवा पूर्वर से मझीटा गोटे ट्रांजिशन एरिया दीजिए जहाँ कहुए नगर पंचायत, तो आगे गोटे विलेज हम तापर नगर पंचायत हम तापर टाउन हम ओके। किंतु जो टाउन सपोज आम तो बड़ विलेज गुड़ा बढ़ी इंडिया जहाँ आम अर्बान एरिया डिक्लेयर करदे पारि थांते, किंतु से जो डेटा आमको जो दरकार डेफिनेशन अच्छी से डेफिनेशन कौन ना कौन गोटे अर्बान एरिया को अर्बान एरिया डेफिनेशन है से दीटा दैट इज व्हाट इट मस्ट सर्टेन और इट मस्ट क्वालिफाइज टू क्राइटेरिया। वन एटलिस्ट 500 से लोक रोथुव गोटे विलेज रे जार डेंसिटी 400 थी आउ सो 75% ऑफ द पीपल्स और द मेन वर्क दे मस्ट बी एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल वर्क। तो ध्यान से देखो क्राइटेरिया गोटे अर्बान एरिया बा रूरल एरिया आम कहते अर्बान रूरल तार क्राइटेरिया कौन क्राइटेरिया है एटलिस्ट कौन सी गोटे विलेज रे 5000 लोक रोचे 400 डेंसिटी एंड 75% ऑफ दैट पॉपुलेशन मेल मुझे टोटाल कहूनी मुझे मेल से मैंने नॉन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस रे निजको जॉइन करबा दरकार बा आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर देन दैट वुड बी टर्न्स टू बी गोटे अर्बन एरिया बोली कह तेणु करके ये क्राइटेरिया फुलफिल करूनी से मैक्सिमम विलेजेस को आम अर्बन एरिया स्टाटस दे पारू ना। बिहार सबुठ अधिक विलेज पॉपुलेशन बिहार अच्छी एटा समस्ते जानिच। डज दैट मीन्स आम कहवा डज दैट एक्ट ऑफ बाइफर्गेशन कौन आम जी एम को बाइफर्गेशन करदेबा जो आम है ना ग्राम पंचायत को लीड टू द बेटर आउटकम ऑफ द रेजिडेंट। हाँ सपोज आम करदेबा एटा न्यू ग्राम पंचायत करदेबा एटा लार्ज विलेजेस स्मॉल विलेजेस कौन आमको ये गोटे भल आमको दब किंतु दैट इज डिपेंड ऑन द डेटा ना डेटा दरकार आमको है ना। तेणुक जदि आम रिक्लासिफिकेशन कर आमको डेटा दरकार डेटा उपर भरसा ना सेंसस हो पारनी तेणुक यहाँ प्रॉब्लम देखा जाऊँगी। प्लस आउ कौन हम जदि आम है ना जदि आम कह जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अच्छी दैट कार्व आउट ऑफ द अर्बन है ना कार्व आउट ऑफ द अर्बन एरिया इवन ड्यू टू द लैक ऑफ रिलेवेंट डेटा बोली हो पार ना तेणुक अर्बन एरिया मध्य आम बढ़ी पारू ना अर्थात कौन अर्बानाइजेशन बढ़ुची ताकू जो क्राइटेरिया आम दबा डेटा कहीं डेटा ना से अर्बानाइजेशन अदरवाइज अदरवाइज अर्बानाइजेशन आहरी बढ़िया कथा जब हो। सो लेट अस नॉट फॉरगेट दैट इज द बल्क ऑफ रूरल इंडिया साइज आम कहे इंडिया साइज बहुत बड़ा 1/3 ऑफ दैन विलेजेस आम पॉपुलेशन जब आम देखा बहुत सारा लोग 16% ऑफ द विलेज पॉपुलेशन जो थी आम एत सारा लोग रोचंती तेणुक सो रूरल इंडिया जो एग्रीकल्चर कथा आम समस्ते जाचे सो दैट मीन्स है ना नो दैट मीन्स सो इज रूरल इंडिया इज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर नो इतने मध्य बहुत सारा छोट छोट आम कह एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री फैक्टरीज लोकेटेड इन द रूरल एरिया नियरली हाफ ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एवं देख ना ए इकोनॉमिक पार्ट को आसिले पेपर 3 को केमती तुम ये यूज कर से कौच जो डेटा रू जना पड़ी रूरल इंडिया डज नॉट मीन्स कि इट वुड बी ऑलवेज रूरल ना आजिकल रूरल इंडिया रे मैन्युफैक्चरिंग भी होमती तुमर जो एनुअल सर्वे इंडस्ट्रीज फैक्टरीज डेटा कहूँ कि इंडिया तो रूरल इंडिया आल्सो प्रोड्यूस हाफ ऑफ ये देखा दैट इज नियरली हाफ ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। बोथ दिस फैक्टरीज एम्प्लॉय ए वट दैट इज द बट nucleus proportion of the India's rural workforce. Reality that about 60% of the rural male workers are self-employed in the farm and non-farm activities. This estimates the annual periodic labor force survey that the problem of small land holding identified by the Ambedkar continues to be the PEXI. That means एठी हमें देखिबा बस हमें कौन देखिबा जो हमें ऑन फार्मिंग आउट फार्मिंग हमें देखिबा ऑन द फील्ड ऑन आउट द फील्ड एथरे हमर मैक्सिमम रूरल इंडिया रे यूथ माने निजको एंगेज करके रखी छे किंतु गोटी प्रॉब्लम होची स्मॉल हाउस होल्ड मतलब लैंड होल्डिंग जहाँ को कहते मार्जिनल फार्मर्स ओके मार्जिनल फार्मर लेस देन 2 हेक्टेयर्स लैंड हमें जहाँ कहते तो वेरियस पॉलिसीज हैव बीन फॉर्मुलेटेड टू सपोर्ट दिस रूरल लाइफ जो मैंने मार्जिनल फार्मर्स रहा स्मॉल फार्मर्स सेमती से सेल्फ हेल्प ग्रुप करागला तांको केमती टेक्नोलोजिकली जमती तुम पीएम विश्वकर्मा स्कीम कथा नहीं जाओ यहाँ भी आसले एम
कि आम पैन रूरल इंडिया टेक्नोलोजी कथा नहीं जाओ है ना, ये डिजिटलाइजेशन कथा नहीं जाओ, ये सब स्कीम आसूँ केमती रूरल इंडिया को आम ट्रांसफर करवा तेणुक ये सब ट्रांसफॉर्मेशन तो आसूँ है। सो बट ये सब आसो जदि आम कौन आप गोटे आम पॉलिटिकल दैट मीन्स ओनर्स दरकार, पॉलिटिकल ओनर्स दरकार। ओके, ऑल अराउंड डेवलपमेंट केमती हो पार विलेज है ना, आउ कौन दरकार ना हमको गांधी अटेम्प्ट टू वर्क out, that is what holistic plan for the rural India. One lesson from the era is need to be what intellectual debate on the development of the statistics, that is what हमें कहबा culting across the ideology। तो आपको हमें देखा पूरा पूरा हमें देखिबा कि है ना इन द लीफ ऑफ हमें कहबा 2024 इलेक्शन पे देखिबा इम्पोर्टेंट टू डिस्कस द वेरियस रूरल विजन कोन, तो विजन ऑफ रूरल इंडिया मध्ये हमें डिस्कस करिया दरकार। तो ये थिला गोटे आर्टिकल्स। देन आम आसवा जीएसटी कलेक्शन बढ़ी जाइए, जीएसटी कलेक्शन तो बढ़ी बहुत बढ़िया न्यूज अच्छी, दैट मीन्स आम कह गवर्नमेंट खास करके मिनिस्ट्री ऑफ फिनान्स पे। तो जीएसटी क्रॉस देखा दीदी इन ए सरप्राइज ग्रोथ दैट इज 1/3 ऑफ द क्रॉस द टैक्स कलेक्शन इन अगस्ट जुलाई अगस्ट रे हेल्प द गवर्नमेंट फिस्कल हाउस इन ऑर्डर। इट फिस्कल हाउस इन ऑर्डर कि एटलिस्ट हाँ गवर्नमेंट गोटे कौन बढ़ी इनकम बढ़ी जीएसटी है ना, जो टार्गेट करते से अदरवाइज कौन हम ना फिस्कल डेफिसिट बढ़ी बढ़ी जीव कहीं खर्च तो बढ़ुची। इन द लास्ट 4 मंथ हम देखा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू जुलाई रिप्रेजेंट दैट इज द सॉरी फिगर ग्रॉस टैक्स कलेक्शंस वेयर दैट मीन्स आम कह दैट मीन्स बट वेयर अप टू 2.3% बेसी भी नाला है ना। देन द सेम क्वार्टर आम प्रीवियस ईयर्स देखी 10% थिला जो कॉर्पोरेट टैक्स है ना। विद अगस्ट बम्प एक्चुअली कौन है फास्ट क्वार्टर आम जो खराब थिला अगस्ट रे किंतु ताकू टिके बैकअप करा जाइछि है ना। से ये आर्टिकल कही कि जो प्रथम जो अप टू आम कह जुलाई जाए बहुत ही कलेक्शन खराब होता 2.83% थिला, जोटा कि बर्तमान लास्ट ईयर 10% थिला, किंतु बर्तमान जो आम देखिले बर्तमान जो नुआ टैक्स कलेक्शन आसी आमर है ना अगस्ट मसरे जो बम्प है ये 16% ईयर ऑन ग्रोथ देखेला। सो दिस इज व्हाट अर्ली दैट इज आम फाइनेंशियल ईयर देखा द इकोनॉमी प्रेडिक्ट टू स्लो डाउन, किंतु ये तो अर्ली इकोनॉमी आगू स्लो डाउन हो पारे, सो तादा टैक्स कलेक्शन कमी पारे। सो गवर्नमेंट हैज सेट इटसेल्फ चैलेंजिंग टारगेट लिमिटेड द फिस्कल डेफिसिट टू 5.9 फ्रॉम द के 6.42 आनिकी 5.9 करे गवर्नमेंट ए वर्ष कर अचीव हम कि नहीं जना नहीं, कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ुची है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले किसी खराब नहीं, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ुची दैट मीन्स हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के देख 37% रही है ना। कीप द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें अधिक रखीचे है ना, जोटा कि देख के ओनली एट 35 लाख क्रोर्स कंपेयर टू द 34 लाख लास्ट ईयर हम देखा। तो कौटी ना कौटी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ुची एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जब कमाईदेवा फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करेगा, ये समस्ते जानिछ आ प्लस इनकम को बढ़ेगा। तो आरबीआई रिसेंटली कितने 87,416 करोड़ डिविडेंड गवर्नमेंट को दे दी, जोटा गवर्नमेंट डिविडेंड ता आउ प्लस डिसइनवेस्टमेंट गवर्नमेंट टारगेट रखी डिसइनवेस्टमेंट को 51,000 करोड़ ताकू डिसइनवेस्टमेंट करेंगे। सो इट इज ओनली विद ए हेल्दी टैक्स कलेक्शन दैट द गवर्नमेंट होप टू फिल द बट रेवेन्यू गैप। देख ठीक अच्छे डिसइनवेस्टमेंट तुम करुच गवर्नमेंट आरबीआई टू डिविडेंड पाइगला, किंतु एट द एंड ऑफ द डे GST or the tax collection is the main that is the factor that can reduce the government burdens, debt burden। ओके जीएसटी को हमको देखा पड़ो रादर देन हाँ ठीक अच्छी डिविडेंड मिलगला डिसइनवेस्टमेंट पर, बट ये जो फिस्कल एम्बिशियस फिस्कल टारगेट अच्छी ना ताकू जदि आम कह हमको जीएसटी कलेक्शन बढ़िया रखुच्छे। खाली मुझे जीएसटी कहूनी दैट इज ऑल अबाउट द व्हाट जीएसटी सर्विस टैक्सेस इनडायरेक्ट प्लस तुमको इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस, दैट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़े को अच्छी डायरेक्ट टैक्सेस बढ़े एंड कस्टम एक्साइज ड्यूटीज नीड टू बी ऑल्सो प्ले द पार्ट। तो टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस बोथ टू बी नीडेड, अदरवाइज आगू को जाइए हमको जो राइजिंग फोएल प्राइस देखा वीकनिंग मॉनसून देखा इलेक्शन आसूची ता द्वारा कौन हम आम अचीव करें जो टारगेट सेट कराई 5.9 से अचीव हो पार ना। तेणु गवर्नमेंट गोटे हार्ड चैलेंज अच्छे बर्तमान है ना। ठीक अच्छे डिसइनवेस्टमेंट रू पैसा आसूँ सब, बट दैट वुड नॉट वर्क एट द एंड ऑफ द डे है ना। देन आम डेंगू कथा देखा, तो आजिकल डेंगूर केसेस इंडिया रे बहुत बढ़ी बढ़ी जाऊँ डेंगू रिलेटेड केसेस। तो डेंगूर जब देख डेंगू कौन पे एडिस एज ए प्लेन मस्किटोज द्वारा होता है आम जाने समस्ते।
आजिकल इंडिया रे देखिए ए वर्ष केस आसी 94,000 से देखिए मोर देन हंड्रेड्स एठी डेटा अकॉर्डिंग टू डेटा 91 डेथ हे सारी केरला रे सबठु हाईएस्ट हमको देखा होची केसेस एंड डेथ केरला रे सबठु अधिक आसुची तो दैट मीन्स हमको केसेस जदि केरला रे सबठु हाई रही ईयर ऑन ईयर केरला रे सबठु केसेस बढ़ी बढ़ी जाउची एंड डेथ आल्सो केरला रे आमे देखबा केरला रे मध्य अधिक केसेस देखाइची तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ुची एंड आल्सो द डेथ 27 डेथ हमें देखा जिवो दिस ईयर ऑन केरला रे राइजिल सबठु इंपोर्टेंट कथा हला चैलेंजेस कोन ना डेथ होची सबठु हां डेंगू केसेस बढ़ुची दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट डेथ बढ़ी बढ़ी जाउची एटा सबठु गोटे आम कौन बिगेस्ट कनसर्न होगी आसी केरला डेथ बढ़ुची बाकी स्टेट डेथ होने अकॉर्डिंग टू द बट अदर व्हेन वी कंपेयर टू द अदर स्टेट टू द केरला द डेथ ऑफ द मोर्टालिटी रिलेटेड टू द डेंगू इज मोर देन इन केरला देन अदर तो ये कौन पे होची बिकॉज ऑफ द अनइवन रेन क्लाइमेट चेंज अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन लैक ऑफ क्लीननेस आवर सिटीज टाउन विलेजेस ओके ये द्वारा कौन होची डेंगू बढ़िबार कॉजेस सो कॉजेस ऑफ डेंगू is what or that is you may call as the dengue is because unhygienic condition unplanned urbanization open drain villages treatment villages towns all this sort and also the warming condition as well the government or the local bodies take lead but the people should understood the mosquitoes bite लोक माने जानिया दरकार है ना निज आखपाख एरिया दैट इज इन द वर्ड विसिनिटी आम देखा लोक मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटीज हवा दरकार पीपल्स विल कम फॉरवर्ड इट शुड बी ए पीपल मूवमेंट हाउ टू स्टॉप द डेंगी ओके सो दैट मीन्स एथरे आम कौन कहबा ये बैटल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज आम देखा दैट मीन्स है ना केरला सर्टनली व्हाट दैट इज द ट्रेन वर्कर जो हेल्थ वर्कर अच्छी ट्रेन करा डेडिकेटेड वर्कफोर्स बा वर्कर करा डेडिकेटेड वर्क करा हेल्थ एक्सपोर्ट्स मानकू कोऑर्डिनेट करने कराऊँगी तो कौटी ना कौटी मस्किटो जोटी जोटी ग्रो कर एरिया को आम धीरे धीरे इंटरप्ट करने चेष्टा कर सो दैट मस्किटो से बर्न न हो तो दिस ऑल्स आ तो आम आज न्यूज थिला सो विथ दिस आई विल एंड द सेशन बट बिफोर दैट आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू शेयर कमेंट and put forward your suggestion which is required for the betterment of this discussion. In the coming age, the coming time, it would be very helpful for the prelims and mains as well. So thank you everyone. Have a good day to all.